days we are seeing a lot of old age patients. They are having difficulty in walking. They are having memory problems, dementia features. We have Dr. Sucharita Anand, ma'am. She is neurologist at Care Hospital, Bhubaneswar. Ma'am, can you please help us on what are the features of normal pressure hydroscope? Normal pressure hydrocephalus, the patient usually will present with dementia. जब patient चलेगा तो they will glue to the ground. So we say कि they have this gluing to the ground वाला gait. We'd like to now know about the all possible treatment options from Dr. Atmaranjan sir. बहुत लोग बोलते हैं एज हो गया इसलिए भूल जा रहे हैं, एज हो गया इसलिए कोई हिसाब में कंट्रोल नहीं हो रहा है, एज हो गया चल नहीं पा रहे हैं। तो नॉर्मली ये तीनों चीज अगर आपको है तो एनपीएच हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट इमीडिएटली इंप्रूव होते हैं। इमीडिएटली मतलब आपको मैजिकल लगेगा, चीजें कि हम चल नहीं पा रहे थे अभी फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाता है। Why are these patients going misdiagnosed? Many patients, lot number of patients will have problems, but they are often going misdiagnosed, not having relief from treatment as well. इसका मेन रीजन ये है कि जो एनपीएच के पेशेंट्स हैं उनके फीचर्स जो है पार्किंसन से थोड़े ओवरलैप हैं। So they are misdiagnosed and mistreated as Parkinson's. So what we are losing the precious time because जितना प्रेशर है उतना ज़्यादा आपके ट्रैक पे डैमेज बढ़ता है। So good morning. I am Dr. Siddharth Agrawal. I am neurosurgeon at Care Hospital, Bhubaneswar. So these days we are seeing a lot of old age patients. They are having difficulty in walking. They are having memory problems, dementia features. चलने में problem हो रहा है. Sometimes they have urinary problems, and they often go misdiagnosed. उनका कोई diagnosis नहीं होता. They keep on visiting doctors, but nobody is able to diagnose them. Whereas there are certain conditions that can be very easily managed and give very good results. One of this condition is normal pressure hydrocephalus. So we have Dr. Sucharita Anand, ma'am. She is neurologist at Care Hospital, Bhubaneswar, with us. Ma'am, can you please help us on what are the features of normal pressure hydrocephalus? See, normal pressure hydrocephalus, the patient usually will present with dementia. मतलब they will have a cognitive impairment or slowness in activity or execution loss. So these patients, as according to their attendant, they will have a lot of memory issues. They will have balance issues. They are not able to walk. They will have a lot of gait impairment. Typically, they have this gait कि जब patient चलेगा तो they will glue to the ground. So we say कि they have this gluing to the ground वाला gait. And whenever they are trying to walk, they have recurrent falls or instability. Along with this, they will have a lot of urinary symptoms in form of urinary retention or incontinence or urgency or frequency. So if you see a patient who is having all these three features, that they fit in the criteria of normal pressure hydrocephalus. Hello, मैं Dr. Rushabh Rude. I am working as a neurosurgeon at Care Hospital, Bhubaneswar. I would like to know more about what symptoms that patients' relatives should look to diagnose normal pressure hydrocephalus in their own relatives. The first symptom patient will have is कि patient का memory problem होगा. Patient को चीजें याद नहीं रहेंगी. बहुत स्लो हो जाएंगे पेशेंट्स हिट देने के बाद शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो। तो फर्स्ट इज मेमोरी इश्यूज। सेकंड जो पेशेंट को इश्यूज होते हैं वो चलने के इश्यूज होते हैं। सपोज पेशेंट चलने की कोशिश कर रहा है बट दे विल बी लाइक ग्लूड टू द ग्राउंड। पैर उठा नहीं सकते, पैर उठा के चलने की कोशिश करेंगे तो टर्निंग में प्रॉब्लम होगा और दे कैन हैव रिकरेंट फॉल्स, बार बार गिरते रहेंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। थर्ड इश्यूज इन पेशेंट्स में होता है ब्लैडर सिम्टम्स कि यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी मतलब बार बार यूरिन जाना पड़ता है और अगर थोड़ा भी डिले होगा तो कपड़े में यूरिन पास हो जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को तीनों फीचर्स हैं तो ये पेशेंट्स को आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस की बीमारी है। That was very informative, ma'am. Can you please enlighten us कि आगे how can we diagnose this disease in our patient? What tests we can do for it? तो फर्स्ट डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल। अगर जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों फीचर्स अगर आ रहे हैं किसी पेशेंट में, इसमें से दो फीचर्स भी आ रहे हैं तो वी कैन मेक अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट माइट बी हैविंग एनपीएच। सेकंड जो होता है हम इमेजिंग करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो एनपीएच हम उसके बेसिस पे डायग्नोस करते हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा सीएसएफ टैप टेस्ट, जिसके अंदर पेशेंट को सीएसएफ निकालते हैं अराउंड 30-35 ml और उससे हम देखते हैं कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट पेशेंट का वॉक में कितना इंप्रूवमेंट आया, पेशेंट का गेट कितना इंप्रूव बेसिकली और पेशेंट का जो मेमोरी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है। तो इन चीज़ों में अगर सपोज पेशेंट को इंप्रूव आ रहा है प्री एंड पोस्ट टेस्ट तो वी आर सर्टेन दैट पेशेंट इज हैविंग एनपीएच। We'd like to now know about the all possible treatment options from Dr. Atmaranjan sir. So normal pressure hydrocephalus एक बहुत ही commonly known disease है। Normally जब ऐसे symptoms आते हैं, memory loss आता है किसी patient को, तो हम dementia बोल के we think it to be dementia। बहुत लोग बोलते हैं एज हो गया इसलिए भूल जा रहे हैं, एज हो गया इसलिए कोई हिसाब में कंट्रोल नहीं हो रहा है।
है, एज हो गया है, चल नहीं पा रहे हैं। तो नॉर्मली ये तीनों चीज अगर आपको है, अगर आप चीजें भूल रहे हो और चल रहे हो ऐसे ऐसे लग रहा है बच्चे चल रहे हैं, एक बेबीज वॉक ना, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर चल रहे हैं और उनको पेशाब में इश्यूज हो रहा है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, मेमोरी लॉसेस हो रही है, तीन चीजें अगर स्पेसिफिकली किसी एल्डरली पेशेंट को हो जो इनका एज 50 से ऊपर हो तो एनपीएच हो सकता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि डिमेंशिया इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज बट एनपीएच इज अ क्यूरेबल डिजीज। आप उसको क्योर कर सकते हो, यू कैन रिवर्ट बैक द पेशेंट टू अ नॉर्मल लाइफ। इसीलिए हमें डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए एनपीएच है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैप टेस्ट करते हैं। टैप अगर पेशेंट को इन तीनों सिम्टम्स जैसे मेमोरी लॉस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और चलने में डिफिकल्टी, वो टर्न नहीं हो सकते, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं, तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके टैप टेस्ट करते हैं। एक डे केयर प्रोसीजर होता है जो मॉर्निंग से पेशेंट एडमिट होता है, 1-2 घंटे में टेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं। तो टेस्ट पर्टिकुलरली क्या है कि आप कमर से थोड़ा सा हम ब्रेन का जो फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं और पेशेंट इमीडिएटली इंप्रूव होते हैं। इमीडिएटली मतलब आपको मैजिकल लगेगा चीज़ें कि चल नहीं पा रहे थे अभी फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाता है उनका। तो हो सकता है प्रोबेबली उससे एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर नॉर्मल रहता है बट पानी जमा हुआ होता है ब्रेन के अंदर। तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, अगर टैप टेस्ट पॉजिटिव आया, आपको सीएसएफ का फ्लूइड निकालने के बाद अगर पेशेंट को गुड सिम्टोमेटिक रिलीफ हुआ तो हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसको हम प्रोग्रामेबल शंट बोलते हैं। हम ब्रेन के अंदर छोटा सा छेद करके उसमें एक ड्रेन डालते हैं, उसकी प्रेशर को उसको स्किन के नीचे लेके एब्डोमेन में रख देते हैं, उसको शंटिंग बोलते हैं, वीपी शंटिंग बोलते हैं। वो प्रोग्रामेबल वे में करते हैं क्योंकि आप उसकी प्रेशर्स को चेंज कर सकते हो। अगर ये टैप टेस्ट पॉजिटिव रहा तो हम अगर शंट करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब रिमार्केबल बेनिफिट्स होते हैं। मेमोरीज चेंज हो जाता है, सडनली दे स्टार्ट रिमेंबरिंग थिंग्स, सडनली दे स्टार्ट वॉकिंग बेटर, यूरिन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये तीनों सिम्टम्स हैं, 3 सिम्टम्स आपको याद रखना है। एक है इम्पॉर्टेंट मेमोरी लॉस, दूसरे उसके साथ चलने में डिफिकल्टी, बेसिकली दे कैन नॉट टर्न और छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं जैसे कि लगता है कि बच्चा चल रहा है। थर्ड सिम्टम ये होता है कि आप पेशेंट को यूरिन इश्यूज होते हैं, बार बार बेड वेटिंग्स वगैरह रहता है। 3 सिम्टम्स है तो दिस इज अ क्योरेबल neurological neurosurgical condition with a VP shunt. Thank you so much. Why are these patients being misdiagnosed? Why are we not treating such patients more often? हम देख रहे हैं कि there is a many patients, lot number of patients जिनमें problems है, but they are often being misdiagnosed, not having relief from treatment ऐसे। बेसिकली इसका मेन रीजन ये है कि जो एनपीएच के पेशेंट्स हैं उनके फीचर्स जो है पार्किंसन से थोड़े ओवरलैप करते हैं। So they are misdiagnosed and mistreated as Parkinson's. What they do, they keep the patients on Synthroid for a very long time. So what we are losing the precious time, because जितना प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा आपके ट्रैक पे डैमेज बनता रहेगा। अब जितना ट्रीटमेंट डिले करेंगे उतना आउटकम कम होता चला जाता है। So there is no actual treatment, मतलब कोई ड्रग्स नहीं है कि लोग देते हैं, डायमॉक्स देते हैं पेशेंट्स को, एसिटाजोलामाइड देते हैं या तो पार्किंसन की दवाई देते हैं, तो उससे पेशेंट को थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा बट लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट वो रहेगा। सो जो मेन जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, तो जो इसका जो फ्यूचर है या जो आपका इंटरवेंशन विच विल हेल्प द पेशेंट इज वीपी शंट। सो एज सून एज पॉसिबल इट शुड बी कंसीडर्ड ऑल पेशेंट्स। जैसा हमें सर ने बताया कि शंटिंग वीपी शंट प्रोसीजर है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। इसके अंदर जो अभी लेटेस्ट टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज द प्रोग्रामेबल वीपी शंट। उसके अंदर दैट इज दिस द न्यू थिंग इन इंडिया कि हम जो शंट का ड्रेनेज है, द प्रेशर्स वी कैन सेट इट, हम उसको वेरी कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को ड्रेनेज ज्यादा चाहिए तो हम प्रेशर ऊपर और नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। प्रीवियसली ये फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, नाउ वी आर एबल टू पुट इन प्रोग्रामेबल वीपी शंट्स व्हिच हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स एंड हम उसका इजीली पोस्ट ऑप में एक सिंपल एक्सरे करके हम उसके प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस हैज रियली हेल्प्ड पेशेंट्स, इट हैज रियली बॉट अप द आउटपुट्स इन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस पेशेंट्स।